Welcome to my YouTube channel English Lovers by Honeybee. In this lesson, what we're gonna do is we're gonna learn about present perfect tense. Yeah. So this is the presentation by me. Okay. I have used the material from various sources so that I can make it clear to you that what is present perfect tense. Okay. So we have done the present indefinite, present you know present indefinite, present continuous. Then now it is the third one, that is present perfect tense. तो पहले हमने क्या किया है, हमने indefinite tense कर लिया है, हमने continuous tense कर लिया है. तो अब किसकी बारी है, perfect tense की बारी है, present time में. तो present period of time में जब हम perfect की बात करेंगे, perfection की बात करेंगे, completion की बात करेंगे, when we talk about the tenses, जब भी हम tense की बात करते हैं तो हम किसी काम को complete करने की बात करते हैं. Okay, so there we have to see that too. It is used to show an action that started in the past and has just finished. Finish का मतलब ये हो गया कि complete हो गया. Okay, तो कब शुरू हुआ था, past में शुरू हुआ था. Okay, but not that way in the past, but in the recent past. Okay, तो अगर past में भी start हुआ, that that would be clear from different factors. तो उसको ध्यान में रखते हुए कि मेन बेसिक बात जो हमने ध्यान में रखनी है कि past से start हुआ, ठीक है, तो present में ख़त्म हो गया. तो if we are having a line and we are carrying that present, past and the future, past, present and the future in a line, then तो past से start हुआ, तो past it won't be from the middle of the past, it would be from the ending of the past and reaching to the present. तो present tense में पहुँचते पहुँचते like how it got completed, that we have to see also. तो एक सेंटेंस की एग्जांपल से अगर मैंने बोला वह काम कर चुका है, that means it is over now. Okay, like it is completed one. Okay, वह काम कर चुका है. Okay, then है shows that at last when we want to say it in a mother tongue, है shows that it is in the present form. Okay, था shows that it is in the past form. तो अगर ये ऐसे है कि वह अपना काम कर चुका है, तो that is in the present perfect form. ठीक है, मतलब पास से कर रहा था, अभी कंप्लीट हो गया, इसलिए we can say that it is present perfect tense. तो स्टेटमेंट जो होगी वो present perfect tense में होगी. बट अगर हमने बोला वह अपना काम कर चुका था, तो था से बन जाएगा पास्ट. तो वहाँ पे परफेक्शन तो हो गई, कंप्लीशन तो हो गई, but in the past. That means the tense would be the past perfect tense. Okay, but past से start होके present में ख़त्म हो गया, that would be the present perfect tense. Let's move further. You're gonna have these structures. You have to clarify all these things. Okay, हर एक structure को समझना बड़ा ज़रूरी है, because अगर हम subject की बात करते हैं, subject दो forms में होता है, singular और plural. तो दिमाग में ये रखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कैसे होना है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी लगनी है. और इसमें क्या होता है कि वर्ब जो इफेक्ट होती है, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब इफेक्ट होती है, बिकॉज इन केस वी आर हैविंग द हेल्पिंग वर्ब. अगर हमारे पास अकेली मेन वर्ब है तो देन अकॉर्डिंगली दैट इट वुड बी डन. बट अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी. In every of the tense, if we talk about every of the tense, there it happens. अगर हमारे पास subject singular है तो हमारे पास in case of present perfect we have to have has. तो has लगेगा singular के साथ, have लगेगा plural के साथ. पर इसमें जो main verb है वो है हमारी past participle, जिसको हम बोलते हैं verbs third form. थर्ड फॉर्म लगनी है, जैसे कि एक फॉर्म हो गई write, सेकेंड हो गई wrote, थर्ड हो गई written. तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वुड बी अप्लाइड इन केस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने लगानी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो दिमाग में रखना है. अगर हम एजर्टिव स्टेटमेंट, और वी कैन से दैट यहाँ पे एजर्टिव की जगह हम अगर लिखते अफर्मेटिव, दैट वुड हैव बीन मच बेटर. तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम लिखते, एजर्टिव तो है ही है ये,
ठीक है ना, बिकॉज इट इज वन ऑफ द कैटेगरी, बिकॉज अफर्मेटिव इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो अगर हमने लिखा है ये सेंटेंस, तो अगर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है तो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, ध्यान में रखना ये, ठीक है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, लाइक इन द गिवन एग्जांपल्स सब्जेक्ट वाज शी इज अ प्रोनाउन, ओके, शी इज अ वर्ड यूज्ड फॉर प्रोनाउन, ओके, यूज्ड फॉर समबडी लाइक हु वाज अ नाउन, तो नाउन की जगह पे शब्द यूज होने वाले को हम प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो शी इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, ओके, तो प्रोनाउन अगर सिंगुलर है देन हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। शी हैज, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन अ लेटर। आई थिंक इट वुड बी क्लियर नाउ कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे लिखना है। दिमाग में हमने दो हेल्पिंग वर्ब्स रखनी है इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज और हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव लगेगा, तो वर्ब थर्ड फॉर्म पक्का लगेगी, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में ओनली परफेक्ट, नॉट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन परफेक्ट टेंसेस इन एनी ऑफ द केस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो अगर हम परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं तो वर्ब थर्ड फॉर्म यूज्ड टू बी अप्लाइड देयर। परफेक्ट टेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ध्यान में रखना है। देन हमारा आ गया नेगेटिव रूल। तो नेगेटिव, अगर हमने स्टेटमेंट नेगेटिव लिखनी है, सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, लाइक फर्स्टली ऑब्वियसली आई विल राइट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेशन साइन आएगा, ये ध्यान में रखना है दैट इन केस ऑफ द नेगेटिव स्टेटमेंट हेल्पिंग वर्ब के बाद, मैं बार बार रिपीट करता हूँ एवरी ऑफ द टेंस दैट remember this thing that after the helping verb we apply the negation sign in the negative sentence case. तो subject plus has and have, that is the basic structure, plus not plus verbs third form plus object, that is verb third form को हम main verb और action verb भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे तो assertive में हो गया या affirmative में हो गया, she has written a letter, she has written a letter का मतलब हो गया उसने वो वह लेटर लिख चुकी है। तो आंसर अगर हमने नेगेटिव में लिखना है या हमने सेंटेंस नेगेटिव में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, जिसका मतलब हो जाएगा वह लेटर नहीं लिख चुकी है, ठीक है। मतलब उसका ये होएगा कि दैट एक्शन इज नॉट कंप्लीट इन दैट सेंस, बट इन द नेगेटिव सेंटेंस वी नीड टू नो दैट कि हम कंप्लीट एक्शन की बात करते हैं, चाहे वो हुआ नहीं हुआ वो बाद में है, पर दिमाग में ये होना चाहिए कि that is in the sentence, the like we have to see that what is the meaning of the sentence, she has not written a letter, वो meaning है, ठीक है। बट ध्यान में ये रखना है कि एक्शन के कंप्लीशन के बारे में तो बात हुई है, ठीक है, that we have to keep in the mind, चाहे वो नहीं हुआ पर लेकिन that is the negative form of the sentence, तो वो ध्यान में रखना है, ठीक है। देन आता हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक भी बोलते हैं, जिसको हम क्वेश्चन भी बोलते हैं, एंड हाउ टू राइट इट। तो हमारे दिमाग में पहले से ये स्ट्रक्चर बैठ चुके हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव पहले आएगी, तो कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखी जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, देन वी आर गोइंग टू राइट द मेन वर्ब, देन वी आर गोइंग टू राइट द ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव साइन लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो आंसर में लाइक इन एग्जांपल इट इज गिवन ओवर देयर, हैज शी रिटन अ लेटर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि कैसे हमने फ्रेम किया, हैज किसके अकॉर्डिंग लगा, शी के अकॉर्डिंग, पर स्ट्रक्चर इन्वर्ट इसलिए हुआ क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम मेन वर्ब लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट इज नॉट मैंडेटरी थिंग दैट कि प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, दैट इज अप टू अस, ओके। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे होएगा कि हेल्पिंग वर्ब से वही इंट्रोगेटिव तो है ही है, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा लास्ट में, तो क्वेश्चन जब भी बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, देन उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, ओके। इन केस ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव यू हैव टू कीप इन माइंड कि नेगेटिव को अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया है उसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हैज और हैव को हम पहले स्पेस पे ले आएंगे, पहले प्लेस पे ले आएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, नॉट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए कि एक बात और ऐड करनी चाहूँगा कि दैट इफ यू वांट टू राइट द स्टेटमेंट
बाय यूजिंग द WH वर्ड, और अगर हमने WH वर्ड से स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है तो कैसे बनेगा, सिर्फ WH वर्ड को हेल्पिंग वर्ब के आगे लगा देना है, नथिंग एल्स इज टू बी डन, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ WH वर्ड को आगे लगा देना है और ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा वाई। सपोज अगर हमने वाई से बनाया तो कैसे बनेगा, वाई हैज शी रिटन अ लेटर, लेटर उसने लेटर क्यों मतलब वह लेटर क्यों लिख चुकी है, ओके लाइक, और वो कंप्लीट क्यों हुआ है, मतलब शी हैज डन दैट वन, आई एम जस्ट टू टेल यू दैट द एक्शन इज कंप्लीट, आई एम यूजिंग दैट चुका है, चुकी है, चुके हैं, ओके, बट इन एनी सेंस इट कैन बी, ओके। तो उसके बाद अगर हमने बात करनी है कि WH वर्ड के साथ अगर हमने वाई के साथ बात करनी है, वाई का मतलब रीजन, व्हाट का मतलब किसी चीज के बारे में, व्हाट हैज शी रिटन इन अ लेटर, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट हैज शी रिटन इन अ लेटर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है व्हाट, व्हाई और व्हेन हैज शी रिटन अ लेटर, ठीक है। तो ये सारे ध्यान में रखना है कि WH वर्ड जो आगे लगा देना है इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अगर क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। हेल्पिंग वर्ब से जो भी क्वेश्चन बनाते हो उसका आंसर यस और नो में स्टार्ट होएगा, उसके बाद आप स्टेटमेंट सीधी असर्टिव में बदल देते हो, सो दैट्स वेरी इजी वन टू डू, ओके। देन कम्स डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कितने तरह के यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इसका मैं आपको बताऊं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हो देयर आर डिफरेंट यूजेस, तो बेसिकली हमने उनमें देखना क्या है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, आई एम गोइंग टू शेयर दैट थिंग। तो यहाँ पे क्या है कि दिस टेंस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कब होता है वो, दिस इज देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन द पास्ट विद द प्रेजेंट। तो अगर पास्ट का प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है देन डेफिनेटली देयर इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है, ठीक है, और प्रेजेंट में वो काम हो चुका है, it's completed, then there are basically three uses of present perfect tense. Here you can see three uses, experience में use होते हैं, change में use होते हैं और continuing situation में use होते हैं। तो कैसे present perfect tense को हम use करते हैं in experience, in change, in continuing situation, let's go for that. You see, अगर हम present perfect tense की बात करते हैं experience के लिए, then how it would happen, we often use the present perfect tense to talk about experience from the past. तो पिछले एक्सपीरियंस जो हमने पहले कुछ एक्सपीरियंस किया, हमने फेस किया, ठीक है, पास्ट में, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं, फॉर दैट वन ऑल्सो वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हेन यू डिड समथिंग, तो उस चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं होएगा कि आपने वो कब किया पास्ट में, पर वो एक्सपीरियंस के बारे में बात होगी पास्ट के। वी ओनली वांट टू नो इफ यू डिड इट, हमने उस चीज में इंटरेस्ट दिखाना है कि आपने किया वो, ठीक है। तो कैसे आपको समझिए ज्यादा सेंटेंस के साथ आएगा। ही हैज लिव्ड इन बलाचौर, ओके, बलाचौर इज द नेम ऑफ द सिटी वेयर आई लिव, ओके, ही हैज लिव्ड इन बलाचौर, ठीक है, तो वो बलाचौर में रह चुका है, ठीक है, देन वो बलाचौर में रह चुका है, ठीक है। द एक्शन और द स्टेट वाज इन द पास्ट, ओके, तो वो रह चुका है का मतलब ये हो गया कि बलाचौर में अब नहीं है, ओके। नाउ इट इज इन माई हेड, आई हैव अ मेमोरी, ठीक है। तो मेरे पास अब क्या रह गया है, उसके बारे में मेरे पास रह गया है मेमोरी। तो ये है दिमाग में रखने वाली बात, ये। सो इन माई हेड नाउ इट इज जस्ट अ मेमोरी नाउ, ओके। तो ये चीज, तो मेमोरी क्यों रहेगी, क्योंकि वो पास में हो गया, मैं रहता था, ठीक है, रहता था बलाचौर में, ही हैज लिव्ड इन बलाचौर, तो उसका मतलब ये हो गया कि वह बलाचौर में रह चुका है, उसका कुछ एक्सपीरियंस है बलाचौर के बारे में, ठीक है। तो क्योंकि वो रह चुका है, देन ही इज हैविंग अ मेमोरी नाउ। सो कनेक्शन विद द पास्ट, इवेंट वाज इन द पास्ट, सो बलाचौर में रहना पास्ट बन गया है,
ठीक है। कनेक्शन विद प्रेजेंट इन माई हेड, तो मेमोरी है, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो है, तो एक्सपीरियंस इस तरह से शो हो रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस शो हो रहा है कि दैट ही हैज लिव्ड इन बालाचौर, उस बंदे का वो एक्सपीरियंस शो हो रहा है कि बालाचौर में रहने वाला, वो एक्सपीरियंस शो हो रहा है। इन माई हेड नाउ आई हैव अ मेमोरी ऑफ द इवेंट, कि मैं बालाचौर में रहता था कभी, ठीक है। आई नो समथिंग अबाउट द इवेंट, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट, तो मेरे को कुछ याद है बालाचौर के बारे में, मेरे को ये भी पता था कि बालाचौर में मैं रहा हूँ, तो दैट इज वाई देयर आई यूज्ड इट फॉर माई एक्सपीरियंस, ही हैज लिव्ड इन बालाचौर। तो उस किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे आई यूज करना है तो यहाँ पे आई हैव लिव्ड इन बालाचौर आएगा, ठीक है। ही हैज इसलिए आया क्योंकि ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि दैट लाइक कि एक्शन था वो पास में, तो स्टेट थी वो पास में कि बालाचौर में रहा, बट अभी वो सारी मेमोरी बन गई है, मेमोरी बन गई है, आपका एक्सपीरियंस बन गया है अभी। ही हैज लिव्ड इन बालाचौर, बालाचौर में रह चुका है। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर चेंज, कैसे यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज के लिए, तो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या चेंज के बारे में जब हमने बात करनी है, द पुलिस हैव अरेस्टेड द किलर, तो किलर को क्या कर चुकी है पुलिस, पकड़ चुकी है, ओके। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। येस्टरडे द किलर वाज फ्री, ठीक है, पास्ट में फ्री था, अभी क्या हो गया है, नाउ ही इज इन द प्रेजेंट। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि येस्टरडे द किलर वाज फ्री, नाउ दैट मीन्स द पुलिस वाज चेजिंग, okay, in the past, okay, the now he is in the present, so that is why it is written the police have arrested the killer, so that is why for the present perfect tense we use it for the completion of action in the present। तो जो पास में चल रहा एक्शन था या पास में स्टार्टेड हुआ कोई एक्शन था, तो वो वाला एक्शन अगर प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाए, देन फॉर दैट वन वी यूज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो next is you have to see, yeah, in the past it was not there, okay, but in the present it got plus, like the police tried to arrest the person in the beginning but could not in the past, but now in the present it got completed, the action got completed, now he is in the present, okay। Now you see, so how it is the connection with the there is any connection with the past, तो past के साथ connection कैसे है, the past is the opposite of the present। तो देखो पहले था वो फ्री, ठीक है, वो हो गया ऑपोजिट, अभी प्रेजेंट में क्या है वो प्रेजेंट में, तो दोनों ऑपोजिट हो गए, फ्री और अभी प्रेजेंट में हो गया, तो देन प्रेजेंट इज द ऑपोजिट ऑफ द पास्ट, तो कनेक्शन प्रेजेंट से क्या हो गया कि तो प्रेजेंट में वो क्या है ऑपोजिट हो गया पास्ट का, कि अब वो प्रेजेंट में है, पहले वो फ्री था, तो दैट यू हैव टू सी दैट हाउ चेंज हैज हैपेंड, ठीक है। तो चेंज के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे यूज करते हैं कि न्यू इन्फॉर्मेशन, और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे हो गया कि पहले कुछ और था अब कुछ और है, like started from the past, like police tried to find out the killer or like chase the killer, but now in the present they have arrested the killer, okay, that is the connection। Then comes, there is a note that American do not use the present perfect tense so much as the British speakers, then the British speakers do not use that much, sorry, Americans do not use the present perfect tense so much as the British speaker, कि Americans जो हैं वो इतना यूज नहीं करते जितना ब्रिटिश स्पीकर्स यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, मतलब उनका वे ऑफ टॉकिंग इन अमेरिका वुड बी डिफरेंट, तो अमेरिकन्स ऑफ्टन यूज अ पास्ट टेंस इंस्टेड, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उनका सिस्टम कुछ और है, वो कैसे यूज करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल डिड यू हैव लंच, डिड यू, did plus you plus first form plus lunch, so that is in the past indefinite। अगर ब्रिटिशर बोलेगा तो कैसे बोलेगा, have you had lunch, did you have lunch, have you had
lunch. See, did is used in the past indefinite interrogative statement. So that is what written there. American used to use like this, did you have lunch? So British कैसे बोलेगा? Have you had lunch? Had is third form of verb. Okay, you have to keep in mind, has have first form, had second form, had third form. You need to remember this thing. Okay, then comes like present perfect tense for continuing situation. तो ये continuing situation के लिए कैसे यूज होएगा? ठीक है, we often use the present perfect tense to talk about continuing situation. कैसे? This is the state that started in the past, तो past में start हुई, continues in the present, तो मतलब कंटिन्यू की प्रेजेंट में, कंप्लीट भी हुई प्रेजेंट में, शायद ऐसा भी होएगा, विल प्रोबेबली कंटिन्यू इन द फ्यूचर ऑल्सो. दिस इज द स्टेट, नॉट एन एक्शन. तो ये एक स्टेट हो गई, एक एक्शन नहीं हुआ. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट एक स्टेट हो गई. ठीक है, तो एक्शन नहीं हुआ, नॉट एन एक्शन. वी यूजुअली यूज फॉर और सिंस विद दिस स्ट्रक्चर. जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ सिंस और फॉर का यूज करते हैं, then it shows the sort of state, not an action. So then let's see that how it is. You see, I have worked here since June. तो मैं थोड़ा समझा दूं कि that since कहाँ लगता है, for कहाँ लगता है. since लगता है point of time के लिए. point of time, exact point of time June हो गया. ठीक है, when we have the point of time we use since. अगर हमारे पास period of time है जब हम fingers पे count कर सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे 2 days है, तो he has been ill for 2 days. ठीक है, अभी been थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे ध्यान में रखना है. he has been, तो ये स्टेट शो कर रहा है. he has been ill for 2 days, तो मतलब 2 दिन से वो मतलब बुखार से जूझ चुका है. ठीक है, तो in a sense I have worked here since June. जून से वह काम कर चुका है. ठीक है, यहाँ पे वह जून से काम कर चुका है. in any sense you can write it in Hindi, but meaning समझ आना चाहिए कि that how it is. okay, I have worked here since June. point of time हमें पता लग गया. ठीक है, तो continuity आ गई उसमें. ठीक है, जून से कर रहा है. ठीक है, तो कर चुका है एक्चुअली, तो जून से स्टार्ट किया, करता रहा. ठीक है, तो अब तक वो कितना काम कर चुका है, दैट मैटर्स. ठीक है, सो व्हाट इज दैट? दिस इज द स्टेट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट. ओके, तो इस ऐसे सेंटेंसेस में उसकी स्टेट शो होती है कि वो तो पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट. ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो जाए, प्रोबेबली. ओके, तो you can see that situation started in the past, it continues up to now, and it will probably continue into the future. हो सकता है, हो जाएगा, most probably it would be. Then the tense would be changed then. So connection with the past कैसे है? situation started in the past, obviously काम करना शुरू किया जून से. ठीक है, then connection with the present, situation continues in the present. तो हमें पता है कि हम like we are saying that I have worked here since June. तो मैं अगर मैं बात करता हूँ अपनी, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि here, तो अभी भी मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ. that means right now that situation still exists, that I'm working over here. ठीक है, तो I have worked here since June का मतलब यही हो गया कि क्वेश्चन अगर मतलब एक्शन जो है हमारा पास में स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टेड इन द पास्ट, तो कंटिन्यूज कर रही है वो चीज़, मैं अभी भी वहीं पे काम कर रहा हूँ. दैट शोज दैट देयर इज अ कनेक्शन विद द प्रेजेंट. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना बड़ा इजी है. ठीक है, द स्ट्रक्चर हैज टू बी केप्ट इन द माइंड. ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या होता है कि परफेक्ट टेंसेस में अक्सर ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, for, since, already, yet, still, often, etc. such sort of words are getting used. okay, तो इनको अगर हम यूज करेंगे in the if we are able to find them, then definitely
we can analyze that sentence is carrying the present perfect form or whichever form. Okay, so now important variations in their position, what are that? Like we still haven't heard from Olga. Okay, still haven't heard. Okay, still is getting used. So still is getting used here. We cannot say we have still not heard from Olga. Okay, uh, we had still not heard from uh, her by the time evening arrived. Okay, so what is more formal? I like it is the right way to say that. Okay, more formal, that is, like I have not heard a convincing explanation of her absence yet. She has phoned already. Has she phoned already? All these sentences are carrying the words, so they are trying to tell us कि अगर ये वर्ड्स हमारे सेंटेंस में कहीं पे दिखते हैं तो बड़ा इजीली हम फाइंड कर लेते हैं कि टेंस कौन सा है. ठीक है, और हमें दिमाग में रखना होता है कि वर्ब कौन सी है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की गई है. अगर हैड यूज किया है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा. हैज और हैव यूज किया है तो विद थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा. Then you see what you need to be careful of. We don't use present perfect when an exact past time is mentioned and there is no connection with the present. तो जैसे कि ये सेंटेंस था I have been to London in 1997. तो यहाँ पे 1997 मेंशन किया गया है टाइम. ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया पास्ट का तो हम नहीं यूज कर सकते. Then what we have to use? We have to use past indefinite. We went to London in 1997. Then next thing, but we can use the present perfect if the period mentioned includes the past and present. Okay, so that's very clear one. We have already discussed about that. We have been here since 6:30. Okay, तो 6:30 से तो वो दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ से स्टार्ट हुआ तो अभी तक वहीं पे है. देन द एक्शन इज विच इज इंक्लूडिंग द पास्ट एज वेल एज इन द प्रेजेंट. सो अगर पास्ट और प्रेजेंट इंक्लूडेड है देन देयर वी कैन ऑल्सो यूज अ प्रेजेंट परफेक्ट वन. या थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon too so that you may get the new notifications or whatever notifications I will be giving for the next lessons to come, for the grammar, for anything. Okay, then if there would be any sort of query, my email address would be known to you, or I'll mention once more hstudy596@gmail.com. And you can send me the WhatsApp message on 70876754472. Okay, it's at the last I said 2, that is T-O-O-2. Okay, so I'll repeat that one, 70876754447, up to that only. Okay, remember that. So thank you for bearing me for such a time, such a good time. So thank you all. God bless you. Stay home, stay safe, and Jai Hind.